Today we are going to start with the topic AS18 related party disclosures. AS18 on related party disclosures basically आसान सा एक चैप्टर है जिसके अंदर हम एक रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप देखेंगे. As prescribed by AS18, what are the related party relationships that are applicable over here? 5 तरह के रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप होंगी जो किसी भी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल रहेगी. उसके अलावा उनके थोड़े बहुत डेफिनेशंस जो टर्मिनोलॉजीज यूज हुई है इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में उनके डेफिनेशंस and the most important portion which is the disclosure which the name suggests, related party disclosure. Now as you can see the name suggests only it is a disclosure standard only. तो खाली disclosure करना है, हमें कोई और technicalities के अंदर नहीं जाना है, यानी financial statement को affect नहीं करेगा ये चीज. but हाँ necessary है कि जो transactions अगर related party के साथ हुए हैं उन्हें disclose करना, separately disclose करना जरूरी है. तो पहले एक introduction ले लेते हैं. AS18 prescribes the requirement for disclosures of related party relationship and transaction between the reporting enterprise and its related parties. The requirements of the standard apply to the financial statement of each reporting enterprise as also to consolidated financial statement presented by a holding company. तो AS18 का main मकसद क्या है? To disclose the related party relationship and the transaction between the reporting enterprise and its related party. Reporting enterprise का मतलब क्या हुआ? Reporting enterprise यानी वो enterprise जिसके हम financial statements prepare कर रहे हैं, जो annual report prepare कर रही है, जिसका हम audit report prepare कर रहे हैं, that is known as a reporting enterprise. Reporting enterprise and its related party के बीच में जो भी transactions होगी या जो भी related party relationship हो, उन्हें हम क्या करेंगे? Disclose करेंगे. The requirement of the standard apply to the standalone financial statement as well as the consolidated financial statement of holding company. रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स कैसे रहते हैं? रिलेटेड पार्टी और पार्टीज आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटेड if at any point of time during the reporting period one party has the ability to control the other party or exercise significant influence over the other party in making financial and or operating decision. एक सिंपल से नटशेल के अंदर बता दिया है कि रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ. एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है, उससे भी ऊपर कंट्रोल कर सकती है या सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर सकती है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन मेकिंग द फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग डिसीजंस, उसे कह सकते हैं कि हाँ ये पार्टीज क्या है, आपस में रिलेटेड है. AS18 खाली 5 रिलेशंस को प्रिस्क्राइब करता है कि ये 5 रिलेशंस के अंदर अगर कोई भी एंटरप्राइज फॉल करते हैं दे विल बी रिलेटेड पार्टीज और उनका सेपरेटली डिस्क्लोजर. कौन से डिस्क्लोजर्स? रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एज वेल एज ट्रांजैक्शन, उनका सेपरेटली डिस्क्लोजर करना नेसेसरी है. कौन से है वो 5 रिलेशंस? सबसे पहले AS18 डील्स ओनली विद रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स डिस्क्राइब्ड इन A to E अबव. 5 सब क्लॉजेस में है A to E. सबसे पहला वाला enterprises that directly or indirectly through one or more intermediaries, enterprises that directly or indirectly through one or more intermediaries control or are controlled by or are under common control with the reporting enterprise. This includes holding company, subsidiaries and fellow subsidiaries. टेक्स्ट में यहां तक ही है. enterprises that directly, slowly पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे. enterprises that directly or indirectly through one or more intermediaries control, directly or indirectly through one or more intermediaries control or are controlled by or are under common control. कंट्रोल कौन करता है? होल्डिंग कंपनी. कौन कंट्रोल हो रहा है? सब्सिडियरी कंपनी. और अंडर कॉमन कंट्रोल यानी फेलो सब्सिडियरीज. तो बेसिकली इसके बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे क्रिएट करे हैं. सबसे पहला लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंटरप्राइजेस दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू वन और मोर इंटरमीडिएरीज कंट्रोल और आर अंडर और आर कंट्रोल्ड और आर अंडर कॉमन कंट्रोल. सबसे पहले होल्डिंग कंपनी H लिमिटेड, सब्सिडियरी कंपनी S लिमिटेड. होल्डिंग कंपनी H लिमिटेड के पास सब्सिडियरी कंपनी S लिमिटेड का 51% वोटिंग पावर है, यानी हम कह सकते हैं कि इट इज द H लिमिटेड इज कंट्रोलिंग S लिमिटेड एंड S लिमिटेड इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय H लिमिटेड. तो दोनों के बीच में रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप है, यानी H लिमिटेड के लिए S लिमिटेड रिलेटेड पार्टी है और S लिमिटेड के लिए H लिमिटेड रिलेटेड पार्टी है. नेक्स्ट वन, H लिमिटेड के पास S लिमिटेड के अंदर 51% वोटिंग पावर है. S लिमिटेड का A लिमिटेड के अंदर 75% वोटिंग पावर है और H लिमिटेड का A लिमिटेड के अंदर रिमेनिंग 25% वोटिंग पावर है. बेसिकली H लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है S लिमिटेड की, S लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है A लिमिटेड की. H लिमिटेड के पास कंट्रोल, कंप्लीट कंट्रोल नहीं है, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, डायरेक्ट कंट्रोल यहां पे नहीं है. H लिमिटेड के पास A लिमिटेड का कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, बट स्टिल इनडायरेक्टली थ्रू S लिमिटेड, बिकॉज S लिमिटेड भी तो क्या है, अंडर द कंट्रोल ऑफ H लिमिटेड, इनडायरेक्टली थ्रू S लिमिटेड
एच लिमिटेड के सब्सटैंशियली पूरे 100% शेयर है किसका, ए लिमिटेड का। तो डायरेक्टली यहां पे हमने डायरेक्ट रिलेशन देखा, यहां पे हमने डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट रिलेशन देखा। एच लिमिटेड के लिए एस लिमिटेड और ए लिमिटेड दोनों रिलेटेड पार्टी है, ए लिमिटेड के लिए एच लिमिटेड और एस लिमिटेड दोनों रिलेटेड पार्टी है, बिकॉज इट इज indirectly being controlled by H limited and directly being controlled by S limited, और S limited के पास H limited और A limited दोनों के related party है, because it is being controlled by H limited and it is controlling A limited। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये related party relationship हर एक enterprise के लिए। हम बेसिकली यहाँ पे रिपोर्टिंग एंटरप्राइज का देख रहे, इन तीनों में से कोई भी रिपोर्टिंग एंटरप्राइज हो, मैंने तीनों का बता दिया कि तीनों के लिए कौन कौन रिलेटेड पार्टी होगा। चलिए थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पे जैसे आप देखोगे एच लिमिटेड का एस लिमिटेड के अंदर पूरा कंट्रोल है, यानी 51% वोटिंग पावर है। एस लिमिटेड का एक सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, यानी खाली 32% वोटिंग पावर है। और एच लिमिटेड का भी अगेन ए लिमिटेड के अंदर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, दैट इज ओनली 40%, यानी कंट्रोल नहीं है बेसिकली। पर अगर आप देखो तो एच लिमिटेड का एस लिमिटेड में 51% है, एस लिमिटेड का ए लिमिटेड में 32% है, यानी इनडायरेक्टली एच लिमिटेड का ए लिमिटेड में 51% ऑफ 32%, दैट इज 16% होल्डिंग थ्रू एस लिमिटेड। थ्रू एस लिमिटेड 16% है, एंड डायरेक्ट होल्डिंग कितना है 40%। 40 प्लस 16 दैट बिकम्स 56% होल्डिंग है, यानी एच लिमिटेड अगेन इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है ए लिमिटेड को, बिकॉज वोटिंग पावर यानी वोटिंग पावर है वो 51% से ज्यादा है, यानी कंट्रोल एस्टैब्लिश हो चुका है। डेफिनेशन हम डेफिनेटली कंट्रोल का पढ़ेंगे आगे जाके, बट इट इज अ वेरी कॉमन थिंग कि ये 51% से ज्यादा अगर वोटिंग पावर हो तो डेफिनेटली कंट्रोल एस्टैब्लिश हो ही जाता है। एच लिमिटेड का ए लिमिटेड में कंट्रोल एस्टैब्लिश है, एच लिमिटेड के लिए एस लिमिटेड में कंट्रोल एस्टैब्लिश्ड है। तो एच लिमिटेड के लिए एस लिमिटेड और ए लिमिटेड दोनों रिलेटेड पार्टी। एस लिमिटेड के लिए एच लिमिटेड तो रिलेटेड पार्टी है, बिकॉज इट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय एच लिमिटेड, दैट इज द इट इज द होल्डिंग इट इज द सब्सिडियरी कंपनी ऑफ एच लिमिटेड। ए लिमिटेड के अंदर खाली सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, कंट्रोल नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे सेकंड वाले क्लॉज के अंदर कि सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होने पे भी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाती है। यहां पे भले इस क्लॉज के अंदर नहीं आएगा, बट आगे हम देखेंगे कि एस लिमिटेड के लिए ए लिमिटेड भी क्या हो जाएगा, रिलेटेड पार्टी बन जाएगी। और ए लिमिटेड के लिए एच लिमिटेड और एस लिमिटेड, बिकॉज इट इज द इन्वेस्टिंग पार्टी, और यहां पे वो इनडायरेक्टली बीइंग कंट्रोल्ड बाय एच लिमिटेड। इसलिए ये हमारा थर्ड एग्जांपल। एंड द लास्ट वन, एच लिमिटेड की दो सब्सिडियरीज है, ए लिमिटेड और एस लिमिटेड। एच लिमिटेड ए लिमिटेड के अंदर 75% होल्ड करता है और एस लिमिटेड के अंदर 51% होल्ड करता है। यहां पे हम ए लिमिटेड और एस लिमिटेड को को सब्सिडियरी या फेलो सब्सिडियरीज कह सकते हैं, और फेलो सब्सिडियरीज भी हमारे डेफिनेशन के अंदर आता है, दैट इज होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी और फेलो सब्सिडियरी कंपनी। तो एच लिमिटेड के लिए ए लिमिटेड और एस लिमिटेड दोनों रिलेटेड पार्टी है। ए लिमिटेड के लिए अगेन एच लिमिटेड और एस लिमिटेड भी, भले ही एस लिमिटेड का ए लिमिटेड के अंदर और कोई इंक्लूजन नहीं है, कोई वोटिंग पावर नहीं है, कोई शेयर होल्डिंग नहीं है, स्टिल ए लिमिटेड के लिए एस लिमिटेड एक रिलेटेड पार्टी है, बिकॉज इट इज द फेलो सब्सिडियरी ऑफ ए लिमिटेड, और एस लिमिटेड के लिए सिमिलरली एच लिमिटेड और ए लिमिटेड रिलेटेड पार्टी। तो ये हुआ हमारा सबसे पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, associates and joint venture of the reporting enterprise and the investing party or venturer in respect of which the reporting enterprise is an associate or a joint venture। ध्यान से वापस पढ़ेंगे इसको पूरा। associate and joint venture of the reporting enterprise, reporting enterprise यानी जिसके financial statements prepare हो रहे हैं, and the investing party or the venturer in respect of which reporting enterprise is an associate or joint venture। एग्जाम्पल देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। एक्स लिमिटेड का ए लिमिटेड के अंदर 25% शेयर होल्डिंग है, दैट इज इट इज एन एसोसिएट। ए लिमिटेड इज एन एसोसिएट ऑफ एक्स लिमिटेड, कंट्रोल एस्टैब्लिश नहीं है पर एसोसिएट यानी सब्सटैंशियल इंटरेस्ट डेफिनेटली है। तो ए लिमिटेड इज एन एसोसिएट ऑफ एक्स लिमिटेड। यहां पे लिखा हुआ है एसोसिएट इज अ रिपोर्ट, एसोसिएट ऑफ द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज इज अ रिलेटेड पार्टी, यानी ए लिमिटेड एक्स लिमिटेड के लिए रिपोर्टिंग रिलेटेड पार्टी होगी। और सेकेंड पॉइंट में ये भी लिखा है इन्वेस्टिंग पार्टी और वेंचरर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच रिपोर्टिंग एंटरप्राइज इज एन एसोसिएट और जॉइंट वेंचर, वो भी रिलेटेड पार्टी बनेगी। यानी ए लिमिटेड अगर रिपोर्टिंग एंटरप्राइज हो तो उसके लिए एक्स लिमिटेड इज द इन्वेस्टिंग पार्टी, ए लिमिटेड इज द एसोसिएट पार्टी। ए लिमिटेड के लिए एक्स लिमिटेड इज द रिलेटेड पार्टी, एक्स लिमिटेड के लिए ए लिमिटेड इज द रिलेटेड पार्टी। सेकेंड वाला एग्जाम्पल देखते हैं। जेवी लिमिटेड करके एक जॉइंट वेंचर है बाय जय लिमिटेड एंड वीरू लिमिटेड। जेवी लिमिटेड इज द जॉइंट वेंचर ऑफ जय लिमिटेड एंड वीरू लिमिटेड। जेवी लिमिटेड के लिए जय लिमिटेड और वीरू लिमिटेड जो वेंचरर्स है वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे। जय लिमिटेड के लिए जो जॉइंट वेंचर है जेवी लिमिटेड ये रिलेटेड पार्टी हो जाएगा, और वीरू लिमिटेड के लिए अगेन जेवी लिमिटेड इज अ जॉइंट वेंचर, तो ये भी रिलेटेड पार्टी रह जाएगा। तो जेवी लिमिटेड के लिए जय लिमिटेड एंड वीरू लिमिटेड रिलेटेड पार्टी है।
जय लिमिटेड के लिए जेवी लिमिटेड इज द रिलेटेड पार्टी, वीरू लिमिटेड के लिए जेवी लिमिटेड इज द रिलेटेड पार्टी। अगर तुमने ध्यान से देखा तो मैंने ये कभी नहीं बोला कि जय लिमिटेड एंड वीरू लिमिटेड विच आर नोन एज को वेंचरर्स, जो आपस में क्या रिलेशन है उनका, को वेंचरर है, ये रिलेटेड पार्टी है। बिकॉज ऐसा डेफिनेशन में कहीं नहीं दिया है, डेफिनेशन में ऐसा कहीं नहीं दिया, इस पॉइंट में ऐसा कहीं नहीं दिया कि को वेंचरर्स जो होते हैं वो रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे। को वेंचरर्स के बीच में कोई रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप नहीं है। जय लिमिटेड एंड वीरू लिमिटेड आर नॉट रिलेटेड एज पर AS 18। एज पर AS 18 सेकंड पॉइंट में क्या बोला है, खाली एसोसिएट, जॉइंट वेंचर और उनके इन्वेस्टिंग पार्टी और वेंचरर्स, यानी एसोसिएट और जॉइंट वेंचर और इन्वेस्टिंग पार्टी एंड वेंचरर्स, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, रिलेटेड पार्टी, बट नॉट को वेंचरर्स। थर्ड पॉइंट देखते हैं, इंडिविजुअल्स ओनिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एन इंटरेस्ट इन द वोटिंग पावर of the reporting enterprise that gives them control or significant influence over the enterprise and relatives of any such individual। दो केसेस में हमने कंपनीज का देखा, एक एंटरप्राइज दूसरी एंटरप्राइज में कितना होल्ड करती है, ये सारी चीजें देखी। थर्ड पॉइंट है हमारा इंडिविजुअल से रिलेटेड, यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इंडिविजुअल, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होल्ड करता है एनी इंटरेस्ट इन द वोटिंग पावर ऑफ द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज दैट गिव्स देम कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एज वेल, यानी खाली कंट्रोल नहीं, इवन इफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो तो वो क्या बन जाएगा, वो इंडिविजुअल रिलेटेड पार्टी बन जाएगा ऑफ द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए लिमिटेड के अंदर कंट्रोल एस्टैब्लिश करते 60% का, 60% वोटिंग पावर है, तो ए लिमिटेड के लिए मिस्टर ए विल बी द रिलेटेड पार्टी। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिखा हुआ है तो मिस्टर ए 40% होल्ड करते, मिसेस ए 20% होल्ड करते ए लिमिटेड में, दोनों मिला के, बिकॉज रिलेटिव्स है आपस में, हस्बैंड एंड वाइफ है, तो मिस्टर एंड मिसेस ए दोनों मिला के कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होल्ड करते हैं इन ए लिमिटेड, इसलिए वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, रिलेटेड पार्टी। नहीं तो भी इंडिविजुअली भी मिस्टर ए और मिसेस ए क्या करते हैं, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होल्ड करते हैं, और सब्सटैंशियल इंटरेस्ट भी यहां पे कवर हो जाता है। कंट्रोलिंग और सब्सटैंशियल इंटरेस्ट मिस्टर ए मिसेस ए लिमिटेड के लिए रिलेटेड पार्टी हो जाएगी। डी पॉइंट, की मैनेजमेंट पर्सनल एंड रिलेटिव ऑफ सच पर्सनल। की मैनेजमेंट पर्सनल यानी कौन होता है, की मैनेजमेंट पर्सनल यानी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द एंटरप्राइज, जो फाइनेंशियल ऑपरेटिंग सारे मैनेजमेंट डिसीजंस लेता है ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। फाइनेंशियल ऑपरेटिंग मैनेजमेंट डिसीजंस जो लेता है उसे बोलेंगे की मैनेजमेंट पर्सनल। आगे इसका पूरा डेफिनेशन देखेंगे डिटेल में, और उसके सारे रिलेटिव्स हमारे रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप के अंदर, उनके साथ अगर कोई ट्रांजेक्शन हमने किया तो उसे सेपरेटली डिस्क्लोज करना जरूरी है। एंड द लास्ट वन, enterprises over which any person described in C और D। ध्यान से तुमने देखा हो तो C और D में हमने इंडिविजुअल यानी पर्सन का नाम लिया हुआ है, एंटरप्राइज का नहीं, और E में क्या लिखा हुआ है, enterprise over which any person described in C or D is able to exercise significant influence। This includes enterprises owned by the directors or major shareholders of the reporting enterprise and enterprises that have a member of key management in common with the reporting enterprise। ध्यान से वापस पढ़ेंगे, एंटरप्राइज ओवर विच पर्सन इन सी और डी इज एबल टू एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। ए लिमिटेड का जो मेजर शेयर होल्डर है मिस्टर ए, उसकी कोई दूसरी एक एंटरप्राइज है, लेट्स से फॉर एग्जांपल एबीसी लिमिटेड, यहां पे हम देख लेते हैं। ए लिमिटेड का एक मेजर शेयर होल्डर मिस्टर ए, जो 60% शेयर होल्डिंग करता है ए लिमिटेड के अंदर, उसकी एक पार्टनरशिप फर्म है एबीसी एंड कंपनी, यानी सिग्निफिकेंट इक्वल पार्टनर है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस यहाँ पे एक फॉल करता है पार्टनरशिप कंपनी के अंदर, एबीसीएन कंपनी के अंदर। तो बेसिकली ए लिमिटेड के लिए एबीसीएन कंपनी इज आल्सो रिलेटेड पार्टी, क्योंकि इट इज फर्स्ट थिंग, इट इज एन एंटरप्राइज ओवर विच एनी पर्सन डिस्क्राइब्ड इन सी और डी। अब मिस्टर ए फॉल करता है क्लॉज नंबर सी के अंदर, एंटरप्राइज in which any person has a significant influence, यानी एबीसीएन कंपनी, तो बेसिकली एबीसीएन कंपनी क्या हो जाएगा हमारे लिए रिलेटेड पार्टी, ए लिमिटेड के लिए रिलेटेड पार्टी हो जाएगा। इसके अलावा भी डायरेक्टर्स है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर डायरेक्टर्स, अच्छा डायरेक्ट डायरेक्टर्स नहीं, सिर्फ जस्ट बिकॉज कि एक डायरेक्टर दूसरे कंपनी के अंदर भी डायरेक्टर है, हमारा डायरेक्टर दूसरी कंपनी के अंदर डायरेक्टर है, डज नॉट मीन कि वो दूसरी कंपनी हमारे लिए रिलेटेड पार्टी हो जाएगी। ओनली इफ इट फॉल्स अंडर सी और डी, अगर वो डायरेक्टर हमारे लिए की मैनेजमेंट पर्सनल है और वो दूसरी किसी एंटरप्राइज के अंदर उसका एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो डेफिनेटली हम क्या कर सकते हैं, इसे रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स इज द की मैनेजमेंट पर्सनल ऑफ वाई लिमिटेड, मिस्टर एक्स इज द की मैनेजमेंट पर्सनल ऑफ वाई लिमिटेड, मिस्टर एक्स ऑल्सो होल्ड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, लेट्स से फॉर एग्जांपल 30% शेयर होल्डिंग इन
जेड कंपनी, तो जेड कंपनी और वाई लिमिटेड दोनों क्या, जेड कंपनी और वाई लिमिटेड दोनों क्या हो जाएंगे, रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वाई कंपनी के लिए मिस्टर एक्स इज द की मैनेजमेंट पर्सनल और मिस्टर एक्स का एक सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस है इन जेड कंपनी, और पर्स्यूएंट टू क्लॉज नंबर ई हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप ठहराएंगे। तो ये हमारे 5 क्लॉजेस हुए, ये हमारे 5 रिलेशंस हुए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे AS 18 का यही एक मेन क्रक्स है कि 5 रिलेशनशिप अगर तुम्हें ध्यान से समझ में आ गए तो ये 5 रिलेशनशिप के ऊपर से ज्यादातर मेजॉरिटी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और उसके अलावा आगे हम पढ़ेंगे एक डिस्क्लोजर वाला पोर्शन, छोटा सा एक डिस्क्लोजर वाला पोर्शन है। वो डिस्क्लोजर वाला पोर्शन AS 18 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से एरियाज के अंदर है, ये 5 रिलेशंस एज वेल एज दोज डिस्क्लोजर्स। बट स्टिल उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो हम एक बार पढ़ लेते हैं। इन कंटेक्स्ट ऑफ AS 18 द फॉलोइंग आर डीम्ड नॉट टू बी रिलेटेड पार्टी। यहां पे इंक्लूजन्स तो हमने 5 पढ़ लिए, पर कुछ एक्सक्लूजन्स है स्पेसिफिकली, जस्ट बिकॉज कंफ्यूजन अराइज ना हो जाए कि ये भी रिलेटेड पार्टी है, इसलिए AS 18 ने क्या किया, एक्सक्लूजन्स के अंदर भी थोड़े डाल दिए कि दीज आर नॉट डीम्ड टू बी रिलेटेड पार्टीज। फर्स्ट वन, two companies simply because they have a director in common unless the director is able to affect the policies of both companies in their mutual dealings। just because दो कंपनी के अंदर एक ही डायरेक्टर है या कोई डायरेक्टर कॉमन में है does not mean कि वो दो कंपनीज रिलेटेड पार्टी है until and unless वो डायरेक्टर की मैनेजमेंट पर्सनल ना हो। तो की मैनेजमेंट पर्सनल होगा तो डेफिनेटली हमारे 5th रिलेशनशिप के अंदर आ जाएगा। A single customer, supplier, franchisor, distributor or general agent with whom an enterprise transacts a significant volume of business merely by virtue of the resulting economic dependence। पहला वाला जो सेकेंड पॉइंट है हमारा, a single customer, supplier, franchisor, distributor, general agent, just because कंपनी का एक बहुत मेजर बड़ा वाला ट्रांजैक्शन होता है और ये जो लोग हैं यानी सिंगल कस्टमर सप्लायर, ये उस ट्रांजैक्शन को इफेक्ट कर सकते हैं बिकॉज वॉल्यूम इतना ज्यादा होता है, वॉल्यूम इतना ज्यादा है, बिकॉज ट्रांजैक्शन इज इन सिग्निफिकेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि ये लोग हमारे उस ट्रांजैक्शन के प्राइस को या वॉट एवर केस इट इज टर्म्स एंड कंडीशंस को अफेक्ट कर सकते हैं। जस्ट बिकॉज उस ट्रांजैक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं डज नॉट मीन पूरी कंपनी को अफेक्ट कर सकते हैं, इसलिए ये लोग, इन लोगों के साथ हमारा कोई रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप नहीं है। The parties listed below in course of their normal dealings with an enterprise by virtue only of those dealings, although they may circumscribe the freedom of action of the enterprise or participate in its decision making process। नीचे कुछ हम पार्टीज देखेंगे, ये पार्टी सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर सकती है कंपनी को इन डिसीजन मेकिंग बट ओनली रिलेटेड टू देयर ओन इंटरेस्ट। सारे इंटरेस्ट नहीं, यानी कंपनी के सारे डिसीजंस नहीं ले सकती, बट कुछ डिसीजंस के अंदर उनका एक इन्फ्लुएंस रह सकता है बिकॉज दे डायरेक्टली अफेक्ट दैट दोज पार्टीज। प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस, प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस डेफिनेटली तुमने देखा ही होगा, बैंक्स जो है वो कुछ स्टॉक को या फिर कुछ असेट्स को हाइपोथिकेट करती है, दे हैव सर्टेन रूल्स रेगुलेशंस, कुछ डिसीजंस उनके बेसिस पे करना पड़ता है कि कंपनी को इसी तरह से काम करना पड़ेगा बिकॉज उन्होंने कंपनी को लोन दिया है। डज नॉट मीन कि बैंक के साथ उनका रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप है, इट्स जस्ट ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बैंक एंड द कंपनी। ट्रेड यूनियंस, डेफिनेटली एम्प्लॉय रिलेटेड कोई भी डिसीजन होता है ट्रेड यूनियंस डायरेक्टली इफेक्ट कर सकती है बट ओनली एम्प्लॉय रिलेटेड और कोई नहीं। पब्लिक यूटिलिटीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट एजेंसीज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड बॉडीज, ये सब कंपनी के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं बाय वन वे और अनदर बट दैट डज नॉट मीन कि इन लोगों के बीच में कोई रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप है। दिस इज जस्ट मियरली कि उस पर्टिकुलर एरिया में बिकॉज दे आर डायरेक्टली अफेक्टेड और दे हैव अ सर्टेन कंट्रोल ओवर द एंटरप्राइज फॉर दैट पर्टिकुलर मैटर, इसलिए डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। Related party disclosure requirement as laid down in AS 18 do not apply in circumstances where providing such disclosures would conflict with the reporting enterprise's duties of confidentiality as specifically required in terms of a statute or by any regulator or similar competent authority। अगर किसी रेगुलेटर सिमिलर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने कॉन्फिडेंशियलिटी का रिक्वायरमेंट यहाँ पे एस्टैब्लिश किया है तो AS 18 डेफिनेटली अप्लाई नहीं होगा, कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच नहीं करना है। उसके अलावा हाँ AS 18 में रिलेटेड पार्टी का पूरा डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। नो डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस। इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस एनीवे क्या हो जाने वाले, एलिमिनेट हो जाने वाले, इसलिए कोई डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं है।
No disclosure is required in financial statement of state-controlled enterprise as regards related party relationships with other state-controlled enterprise and transactions with such enterprise. State-controlled enterprise का दूसरे state-controlled enterprise के साथ कोई transaction है तो ये related party relationship नहीं माना जाएगा और उसमें disclosure की जरूरत नहीं है. चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ definitions के साथ. Definitions of other terms used in AS 18. Yes friends, सबसे पहला हमारा definition जो रहेगा related party transaction. What is a related party transaction? A transfer of resources or obligations between related parties regardless of whether or not a price is charged. यानी प्राइस को बिल्कुल भी मायने नहीं दिया है, कम प्राइस चार्ज किया, ज्यादा प्राइस चार्ज किया, मार्केट प्राइस से ऊपर चार्ज किया या नीचे चार्ज किया, कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर रिलेटेड पार्टी के बीच में कोई भी ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज और ऑब्लिगेशंस है तो वो उसे हम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मानेंगे. नेक्स्ट वन हमारा कंट्रोल है. वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, क्योंकि हमारे सारे रिलेशनशिप में अभी तक में जितने भी देखे हमने, हमारा सबसे पहला वाला जो पोर्शन था, हमारे सबसे पहला रिलेशन था, क्लॉज ए जो था, उसमें कंट्रोल का पूरा दिया गया. कंट्रोल का डेफिनेशन यानी क्या? हाउ डज वन एंटरप्राइज कंट्रोल द अदर एंटरप्राइज? ओनरशिप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑफ मोर देन 1/2 ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ एन एंटरप्राइज. ये तो बहुत ही कॉमन सा है, यानी नॉर्मल जैसे 51% से ज्यादा अगर हमारे पास वोटिंग पावर है तो हम क्या करेंगे? कंट्रोल कर पाएंगे. कंट्रोल दूसरी तरीके से भी हो सकता है, कंट्रोल ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन केस ऑफ अ कंपनी और द कंपोजिशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग गवर्निंग बॉडी इन केस ऑफ एनी अदर एंटरप्राइज. अगर तुम्हारे पास राइट है कि तुम जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनके कंपोजिशन को कंट्रोल कर सको, या फिर इन एनी अदर केस अगर कंपनी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगी, अगर दूसरी कोई भी एंटरप्राइज होती है तो उसकी जो गवर्निंग बॉडी है उसके कंपोजिशन को अगर तुम कंट्रोल कर रहे हो तो यू हैव अ कंट्रोल ओवर द होल एंटरप्राइज. अ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन द वोटिंग पावर and the power to direct by statute or agreement the financial or operating policies of the enterprise. सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, डेफिनेटली कंट्रोल नहीं है, सिर्फ क्या है? सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, यानी 50% से नीचे वोटिंग पावर है, बट अलॉन्ग विद द सब्सटैंशियल इंटरेस्ट यू आल्सो हैव द पावर टू डायरेक्ट बाय स्टैट्यूट और अग्रीमेंट द फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसीज ऑफ द एंटरप्राइज. तो सिर्फ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट यानी कंट्रोलिंग इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, बट उसके साथ साथ यू हैव अ पावर टू डायरेक्ट और कंट्रोल दी फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसीज ऑफ दी एंटरप्राइज. तो इसे हम कंट्रोल ही माना जाएगा. नेक्स्ट वन, फॉर द पर्पस ऑफ AS 18 एन एंटरप्राइज इज कंसिडर्ड टू कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी और गवर्निंग बॉडी ऑफ एन एंटरप्राइज इफ इट हैज द पावर without the consent or concurrence of any other person to appoint or remove all or a majority of directors or members. कंपोजिशन कब तुम कंट्रोल करते हो? जब तुम मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को ऐड या रिमूव कर सकते हो, यानी अपॉइंट कर सकते हो या रिमूव कर सकते हो फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. An enterprise is deemed to have the power to appoint a director or member of the governing body if any of the following conditions is satisfied. A person cannot be appointed as a director or member of the governing body without the exercise in his favor by that enterprise of such a power as aforesaid. यानी एंटरप्राइज ने जब तक हाँ नहीं बोला एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए, तब तक वो पर्सन डायरेक्टर या मेंबर ऑफ द गवर्निंग बॉडी नहीं बन सकता. नेक्स्ट, a person's appointment as a director or member of the governing body follows necessarily from his appointment to a position held by him in that enterprise. यानी उस एंटरप्राइज के अंदर a person's appointment as a director or member of a governing body follows necessarily from his appointment to a position held by him in that enterprise. यानी फॉर एग्जाम्पल एक्स लिमिटेड के पास ऐसी पावर है दैट इफ अ पर्सन होल्ड्स एनी पोजीशन इन एक्स लिमिटेड, उसके बाद ही वो किसी एक गवर्निंग बॉडी का मेंबर बन सकता है या किसी कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है. लेट्स से फॉर एग्जांपल वाई लिमिटेड का, एक्स लिमिटेड के पास ऐसी पावर है कि बाय स्टैट्यूट और एन अग्रीमेंट दैट उस एंटरप्राइज के अंदर एक पर्टिकुलर पोजीशन अगर कोई होल्ड करता है उसके बाद ही कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ वाई लिमिटेड. तो अगेन एक्स लिमिटेड के पास एक कंट्रोल है कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का. The directors or member of the governing body is nominated by the enterprise. In case that enterprise is a company, director is nominated by the company or subsidiary thereof. An enterprise or individual is considered to have a substantial interest in another enterprise if that enterprise or individual owns directly or indirectly 20% or more interest in the voting power of the other enterprise. Similarly, an individual is considered to have a substantial interest in an enterprise if that individual owns directly or indirectly 20% or more interest in the voting power of the enterprise. Enterprise हो या individual हो, substantial interest का मतलब क्या हुआ? अगर 20% से ज़्यादा वोटिंग पावर हो तो उसे क्या किया जाएगा? substantial interest बोला जाएगा. नेक्स्ट वन, एसोसिएट का डेफिनेशन देख लेते हैं. एन एसोसिएट एन एंटरप्राइज इन विच एन इन्वेस्टिंग रिपोर्टिंग पार्टी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एंड विच इज नाइदर अ सब्सिडियरी नॉर अ जॉइंट वेंचर ऑफ दैट पार्टी. एसोसिएट यानी कोई सब्सिडियरी या जॉइंट वेंचर नहीं है, बट
किसी एक इन्वेस्टिंग रिपोर्टिंग पार्टी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? पार्टिसिपेशन इन द फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजंस ऑफ द एंटरप्राइज बट नॉट कंट्रोल ऑफ दोज पॉलिसीज। पार्टिसिपेशन, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कैसे होगा? पार्टिसिपेशन इन फाइनेंशियल ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजंस ऑफ द एंटरप्राइज बट नॉट कंट्रोल ऑफ दोज पॉलिसीज का मतलब क्या हुआ? बेसिकली ये भी क्या हो जाएगा? एक सब्सटैंशियल इंटरेस्ट जैसा ही हो जाएगा, यानी 20% से ज़्यादा अगर पावर है तुम्हारे पास तो यू कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजंस ऑफ द एंटरप्राइज। इट मे बी एक्सरसाइज्ड इन सेवरल वेज, फॉर एग्जाम्पल बाय रिप्रेजेंटेशन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अलग अलग डेफिनेटली और बहुत सारे तरीके हैं, बट सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इज वन ऑफ देम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। Representation on the board of directors, participation in the policy making process, material intercompany transactions, interchange of managerial personnel or dependence on technical information. Significant influence may be gained by share ownership, statute or agreement. As regards share ownership, if an investing party holds directly or indirectly through intermediaries 20% or more, yani substantial interest, voting power of the enterprise, it is presumed that the investing party does have a significant influence unless it can be clearly demonstrated that this is not the case. अगर 20% से ज़्यादा voting power है तो हम मान लेंगे कि हाँ substantial interest यानी significant influence है, until unless प्रूव कर सके कि नहीं ऐसा कोई केस नहीं। Conversely, if the investing party holds directly or indirectly through the intermediaries less than 20% of the voting power of the enterprise, it is presumed that the investing party does not have significant influence unless such influence can be clearly demonstrated. Conversely, यानी उसके opposite में 20% से अगर कम voting power है तो हम ये presume कर देंगे कि investing party का कोई significant influence नहीं है until and unless it is demonstrated कि नहीं, even though 20% से कम voting power है फिर भी एक significant influence है। Next, a substantial or majority ownership by another investing party does not necessarily preclude an investing party from having significant influence. खैर ये सब तो हमारी definitions थी, सबसे important वाली definitions। तो हमारे main जो दो portions थे which is the relations between the related party relationship, जो हमारे 5 points थे वो, and जो resulting हमारे जो definitions है जो उन clauses के अंदर use हुए थे, ये सारे वो definitions हैं। अभी हमारा एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बाकी रहता है विच इज अबाउट की मैनेजमेंट पर्सनल, बट उससे पहले हम एक इलस्ट्रेशन देखेंगे रिगार्डिंग द क्लॉजेस रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप जो हमने अभी देखा। आइडेंटिफाई द रिलेटेड पार्टीज इन द फॉलोइंग केसेस एज पर AS18। A Limited holds 51% of B Limited, B Limited holds 51% of O Limited, Z Limited holds 49% of O Limited। यानी तीनों केसेस में यहाँ पे 4 एंटरप्राइजेस है A, B, O और Z। चारों केसेस में तुम्हें बताना पड़ेगा कि ए लिमिटेड के लिए कौन कौन रिलेटेड पार्टी है, बी के लिए कौन है, ओ के लिए कौन है और जेड के लिए कौन है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रिपोर्टिंग एंटरप्राइज अगर ए लिमिटेड हो तो। ए लिमिटेड बी लिमिटेड में होल्ड करती है एक कंट्रोल, यानी कंट्रोल होल्ड करता है, तो बेसिकली ए लिमिटेड के लिए बी लिमिटेड इज अ रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। सबसे पहला पोर्शन हमारा हुआ बी लिमिटेड। बी लिमिटेड होल्ड करता है ओ लिमिटेड के अंदर, तो ओ लिमिटेड भी अगर अगेन सब्सिडियरी हो जाएगा ए लिमिटेड का इनडायरेक्ट कंट्रोल के थ्रू। ए लिमिटेड का डायरेक्ट कंट्रोल बी लिमिटेड का बी लिमिटेड में, बी लिमिटेड का डायरेक्ट कंट्रोल ओ लिमिटेड में। सो रिपोर्टिंग एंटिटी के लिए ए लिमिटेड, रिपोर्टिंग एंटिटी अगर ए लिमिटेड हो तो उसके लिए बी लिमिटेड और ओ लिमिटेड रहेगा। जेड लिमिटेड ओ लिमिटेड के अंदर रिमेनिंग 49% होल्ड करता है, तो जेड लिमिटेड का कोई रिलेशन नहीं है विथ ए लिमिटेड और बी लिमिटेड फॉर दैट केस। बी लिमिटेड के अगर देख ले हम तो बी लिमिटेड के लिए ए लिमिटेड इज द होल्डिंग कंपनी, O Limited is the subsidiary company, A Limited is the holding company, O Limited is the subsidiary company। तो A Limited और O Limited हमारे लिए क्या हो जाएंगे? रिलेटेड पार्टी। O Limited में अगर हम देखें तो A Limited एंड B Limited दोनों हमारे लिए क्या हो जाएंगी? होल्डिंग कंपनी हो जाएगी, बिकॉज इनडायरेक्ट एज वेल एज डायरेक्ट कंट्रोल A Limited और B Limited का है। और Z Limited भी क्या हो जाएगा? O Limited के लिए एक रिलेटेड पार्टी हो जाएगा एज पर क्लॉज B, बिकॉज एक इन्वेस्टिंग पार्टी बन जाएगी Z Limited, बिकॉज इट होल्ड्स 49%, यानी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है Z Limited का ओवर O Limited। तो O लिमिटेड के लिए A लिमिटेड एंड B लिमिटेड दोनों होल्डिंग कंपनी है, दैट इज वाई रिलेटेड पार्टी, एंड Z लिमिटेड इज अ इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग पार्टी एंड दैट इज वाई इट इज अ रिलेटेड पार्टी। Z लिमिटेड के लिए सिर्फ और सिर्फ O लिमिटेड है, बिकॉज एक एसोसिएट है। O लिमिटेड Z लिमिटेड के लिए क्या है? एसोसिएट है, तो Z लिमिटेड के लिए सिर्फ O लिमिटेड रिलेटेड पार्टी है, बाकी A और B से उसका कोई रिलेशन नहीं है। तो ये था हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं टू की मैनेजमेंट पर्सनल। हमारा डेफिनेशन जो है की मैनेजमेंट पर्सनल का, who is a key management personnel? Those person who have the authority and responsibility for planning, directing and controlling the activities of the reporting enterprise. Simple definition, those persons who have the authority
एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी पावर भी है, ड्यूटी भी है, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, दे आर नोन एज द की मैनेजमेंट पर्सनल. फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ अ कंपनी, द मैनेजिंग डायरेक्टर्स, होल टाइम डायरेक्टर्स, मैनेजर. कंपनीज एक्ट के अंदर तुमने पढ़ा ही होगा मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर के बारे में. In accordance with whose directions or instructions the board of directors of the company is accustomed to act or usually considered key management personnel. तो basically managers, managing directors और whole time directors in accordance to whom क्या होगा, board of directors usually काम करते हैं और उनके डिसीजंस के बेसिस और उनके ही इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे सारे डिसीजंस लिए जाते हैं. अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ की मैनेजमेंट पर्सनल. नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इसलिए की मैनेजमेंट पर्सनल नहीं होगा जस्ट बाय बिकॉज इट इज ही इज अ डायरेक्टर इसलिए. हाँ, उसके अलावा इफ ही हैज एनी पावर टू प्लान, डायरेक्ट और कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज तो डेफिनेटली हम उसे KMP बोल सकते हैं, की मैनेजमेंट पर्सनल. बट जस्ट बिकॉज वो डायरेक्टर है डज नॉट मीन कि वो की मैनेजमेंट पर्सनल होगा. तो बाय वर्च्यू ऑफ हिम मियरली being a director unless he has the authority and responsibility for planning, directing and controlling the activities of the reporting enterprise. The requirements of AS18 should not be applied in respect of a non-executive director even if he participates in the financial or operating policy decisions of the enterprise unless he falls in any of the categories of related party relationships discussed above. तो directors, non-executive directors या कोई भी even though they participate in financial or operating policy decision, जब तक वो किसी क्लॉज के अंदर फॉल ना करे तब तक वो रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप के अंदर उन्हें डिस्क्लोज नहीं करेंगे. चलिए हमारे लास्ट टॉपिक को देख लेते हैं, विच इज अबाउट डिस्क्लोजर, यानी हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पूरे चैप्टर को डिफाइन करता है कि रिलेटेड पार्टी है. रिलेटेड पार्टी तो पता चल गई कि रिलेटेड पार्टी कौन होते हैं, अब उनके रिलेटेड डिस्क्लोजर्स क्या क्या चीजें करनी है उसकी एक लिस्ट है, हम लिस्ट को पढ़ लेते हैं जस्ट फॉर रीडिंग पर्पसेस. दो इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली बट बहुत ही आसान है. सबसे पहला क्या क्या चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, नेम ऑफ द रिलेटेड पार्टी एंड नेचर ऑफ द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप वेयर कंट्रोल एग्जिस्ट शुड बी डिस्क्लोज्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर और नॉट देयर हैव बीन ट्रांजैक्शंस बिटवीन द रिलेटेड पार्टी. कोई भी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप हो, ट्रांजैक्शन हो या ना हो, हमें नाम और नाम, किसका नाम, रिलेटेड पार्टी का नाम और नेचर ऑफ द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप, इतना तो डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा. वेदर और नॉट देयर हैव बीन अ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन होगा तो ट्रांजैक्शन के बारे में भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा, बट ट्रांजैक्शन हो या ना हो एटलीस्ट हर रिलेटेड पार्टी का नाम और उसके साथ क्या रिलेशन है उतना डिस्क्लोज करना पड़ेगा. This is to enable users of financial statement to form a view about the effects of the related party relationship on the enterprise. If there has been a transaction between the related party during the existence of related party relationship, the reporting enterprise should disclose the following. Transaction होगा तो बहुत सारी चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ेगी. देख लेते कौन सी चीजें. सबसे पहले नेम ऑफ द ट्रांजैक्टिंग रिलेटेड पार्टी एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन दी पार्टीज. ये तो कॉमन चीज है, ये हम ट्रांजैक्शन हो या ना हो, नाम और रिलेशनशिप तो हम डिस्क्लोज करने ही वाले. बट उसके साथ साथ एडिशनल अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, किस तरह का ट्रांजैक्शन किया है. सो डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, तुमने सेल किया है, उन्हें सैलरी पे करी है, कोई कमीशन पे किया है, एटसेट्रा एटसेट्रा, क्या चीज किया है. तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन. वॉल्यूम ऑफ द ट्रांजैक्शन आइदर एज एन अमाउंट और एज एन अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन, कितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन किया है. तो बेसिकली ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि कितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन हमने रिलेटेड पार्टी के साथ किया है. एनी अदर एलिमेंट ऑफ द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नेसेसरी फॉर एन understanding of the financial statement, the amounts or appropriate proportions of outstanding items pertaining to related parties at the balance sheet date and provision for doubtful debts due from such parties at that date. रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में और कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को समझने के लिए और कोई एलिमेंट की जरूरत है तो उसका पूरा डिस्क्रिप्शन. पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि जितना भी आउटस्टैंडिंग है अमाउंट एट बैलेंस शीट डेट, लेट्स से फॉर एग्जांपल तुमने कुछ सेल किया है किसी रिलेटेड पार्टी को और पैसा आना बाकी है, डेटर्स के अंदर शो कर रहा है, तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट और अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शंस ऑफ आउटस्टैंडिंग आइटम्स pertaining to related parties at the balance sheet date and provision for doubtful debts due from such parties at that date. अगर तुम्हारे रिलेटेड पार्टी तुम्हारे डेटर्स हुए और डेटर्स के अगेंस्ट तुमने अगर कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट किया है तो वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का भी सेपरेट डिस्क्लोजर होना जरूरी है. Amounts written off or written back in the period in respect of debt due from or to related party. राइट कोई अमाउंट राइट ऑफ किया एज बेड डेट या फिर कोई राइट बैक किया है, अगर कोई पैसा मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल क्रेडिटर है और क्रेडिटर ने कुछ पैसा माफ किया है तो बेसिकली उसके लिए अमाउंट राइट ऑफ या रिटर्न बैक इन द पीरियड इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट्स ड्यू फ्रॉम और टू द रिलेटेड पार्टीज. तो ये हमारे हुए डिस्क्लोजर्स.
एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं और फिर इस चैप्टर को हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। नर्मदा लिमिटेड सोल्ड गुड्स फॉर ₹90 lakhs to गंगा लिमिटेड ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31st March 2017।